دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو، تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے۔ اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی۔ بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے، لوگ ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے، جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان، کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے۔ فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں، آسمان میں اتنے فرشتے ہیں۔ تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل ایک چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم۔ اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔ انار، بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب کی جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں،
नॉर्थ ईस्ट में का पानी कमजोर है, आयरन से भरा हुआ पानी है, तो वहां की जमीन से जबरदस्त नेमत अल्लाह की चाय की सूरत में निकलती है। क्योंकि जहां आयरन हो वहां चाय पीना मुफीद है, ताकि उस आयरन के असर को काट दिया जाए। और जहां समंदर के किनारे जहां का माहौल हमेशा गर्म रहता है, सर्दियां कम पड़ती हैं, उस गर्म माहौल में जहां का पानी खारा है समंदर का, बहुत दूर तक जमीन के नीचे का पानी खारा होता है, उन हालात में नीम का पेड़, नीम का इस्तेमाल, लीमू का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल जरूरी है। उन खित्तों में आप जाके देखें नीम की खेती, इमली की खेती, इस तरीके से अल्लाह ने हमारे जिंदा रहने की सारी नेमतें बनाई। एक एक नेमत पे किताबें भरी पड़ी हुई, सेब, अनार, संतरा, केला, बैर, जामुन, सब पर अलग अलग किताबें लिखी हुई। किताबों का भंडार है, पढ़ें और अपने सीने को रोशन करें। और साहब एक तो ये सारी बातें होगी, वेजिटेबल्स को देखें आप, वेजिटेबल्स के अलावा देखें आप लहसुन, अदरक। लहसुन कैंसर का इलाज है, अदरक कैंसर का इलाज है। लहसुन, अदरक, प्याज कुव्वते मर्दानगी का जबरदस्त जरिया है। दिन में प्याज खाए आदमी जबरदस्त कुव्वते बाह में इजाफा हो जाए, रात में खाए तो फिर वो उसके मुज़िर असरात हो जाए। लहसुन आदमी एक दाना डेली खाए और कैंसर उससे दूर होता रहेगा। अदरक जबरदस्त चीज है, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये हल्दी कैंसर का इलाज है। बड़े बड़े हकीम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जितने बड़े बड़े हकीम हैं, साहब रामदेव हों या हकीम सलमान हों, इस जमाने के पहले के पुराने हकीम, सारे लोग हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, इन सारी चीजों से दवाइयां तैयार करते हैं। ये सारी चीजें लाजवाब है। ये सारी चीजें कौन फरिश्ता खाता है? नहीं, मेरा बंदा खाएगा। लहसुन मेरा बंदा खाएगा, अदरक मेरा बंदा खाएगा, प्याज मेरा बंदा खाएगा, आम मेरा बंदा खाएगा, सेब मेरा बंदा खाएगा, अनार मेरा बंदा खाएगा। आदमी की तबीयत घबरा जाती है एक चीजें खाने से, इसलिए बदल बदल कर नेमतें अल्लाह देता है। कभी सेब खाओ, कभी अनार खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी आम खाओ, कभी जामुन खाओ। सब्जियों में आलू खाते खाते दिल घबरा जाता है, इसलिए आलू खाओ, गोभी खाओ, टमाटर खाओ, मूली खाओ, भिंडी खाओ, परवल खाओ, ये मटर खाओ, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और दाल के 125 किस्में सिर्फ दाल की है। हमारे नजदीक तो मसूर है, अरहर है, यही सारी चीजें हैं। मगर जो लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, उनसे पूछे कि साहब वैज्ञानिकों के नजदीक इस दाल की कितनी किस्में हैं? वो तो आम लोग नहीं जानते आला हजरत को। आला हजरत जहां मुजद्दिद थे, जहां शेखुल इस्लाम थे, वहीं एक जबरदस्त साइंटिस्ट भी थे आला हजरत, जिन्होंने पानी पे रिसर्च की तो पानी किस्मों को दरियाफ्त कर लिया। जिन्होंने घोड़ों के पर रिसर्च किया तो घोड़ों की हजारों नस्लों के बारे में दरियाफ्त कर लिया। जिन्होंने साहब किसी जंगल को उठाया तो उस जंगल के दरख्तों के हजारों प्रकार को टच किया। इस तरीके से इल्म जहां बढ़ता जाता है, वहां अल्लाह की मारिफत जबरदस्त ढंग से उसके सीने में आती चली जाती है। वह जो सबसे बड़ा आलिम होगा, वो सबसे बड़ा आरिफ होगा, वो सबसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा। तो ये इल्म वाले जानते हैं कि दाल की कितनी किस्में हैं, इल्म वाले जानते हैं कि चावल की कितनी किस्में हैं। एक चावल बासमती चावल ही काफी था, लेकिन साहब दुकान में जाएं, दर्जनों किस्म है चावल की। एक आम काफी था, मालदा का आम काफी था, लेकिन आप जाके देखें एक दर्जन आम की। अल्फांसो है, कहीं अल्फांसो है, कहीं बम्बई है, कहीं लंगड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबके प्यार्स हैं, सबके जोड़े जोड़े, सबकी अलग अलग किस्में। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ना अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं, ना अल्लाह खाता है, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी चीजें इसी हजरत इंसान के लिए हैं, ताकि सारी नेमत तुम्हारे लिए, भिंडी तुम्हारे लिए, पलवल तुम्हारे लिए, और फिर सब्जी ही खाओगे तो तुम्हारे जिस्म को तरक्की नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म को चाहिए मछली, इसी समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए हैं। बंदा गौर करे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, कभी तन्हाई में सोचने का मौका कहां मिलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, अल्लाह ने हम इस सारी कायनात को क्यों पैदा किया है। मुकाबला है खाने पीने का, बस एक छोटी सी चीजों का मुकाबला है। अब जरा गौर से उसी खाने को देख लें आप कि सब इतना जबरदस्त इंतजाम कैसा है। एक वैज्ञानिक यूरोप का कहता है कि इस दुनिया का जो पैदा करने वाला है वो सबसे बड़ा रियाजीदां है, यानी हर काम में मैथमेटिकल पॉइंट्स नजर आते हैं।
جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے، اور تمام ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو سات انک ہیں وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے۔ جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں، اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے والذی قدر فہدى، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے، ان سہوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں، ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں۔ یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار، یہاں تک کہ سمندروں 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے۔ یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے، اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے۔ اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں، تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں، یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے۔ جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے، تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں، اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں۔ یہ چاند کافی تھا، یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں، سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے۔ یہ چاند ہے، ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں، باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے، اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے۔ جوان صرف ایک دن ہوتا ہے۔ اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے، اور ایک دن جوان ہوتا ہے 14 تاریخ تک۔ یہ بڑھتا رہا، 14 کے بعد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا۔ کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless in the creation of the heavens and the earth، زمین آسمان کی پیدائش میں، in the changing of the night and the day، رات اور دن کے بدل کے آنے میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، بے وقوفوں کی نہیں، احمقوں کی نہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے۔ یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے۔ عقل مند
غور کریں, اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے, برین کا سسٹم, ہارٹ کا سسٹم, لنگز کا سسٹم, یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم, ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے, پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے, مر جاتا ہے. ذرا سا برین کی ایک رگ دب جائے, 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے, وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے. یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم, یہ برین کا سسٹم الگ, آئیز کا سسٹم الگ, یہ ایئرز کا سسٹم الگ, یہ نوز کا سسٹم الگ, یہ زبان کا سسٹم الگ, یہ دانت کا سسٹم الگ. کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا, وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں. اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی. پردہ پڑ گیا, پردے کا آپریشن ہو گیا, چھالا پڑ گیا, چھالے کا آپریشن ہو گیا. اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو, موتیابین کا آپریشن کر دو, صاحب آپریٹ کر دو, پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں کوئی آپریشن کامیاب نہ ہوگا. شنکر نیترالے جواب نہیں اس کے پاس. امریکہ کا صاحب نیو یارک کا سب سے بڑا ہاسپٹل, اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اندر کی رگیں ہی جب سوکھ جائیں پھر تو کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا. یہ آنکھ کا سسٹم, زبان کا سسٹم, یہ کھانا کھانے کا سسٹم, کھانا کے پچانے کا سسٹم, یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم, ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم, ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم, اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم, جانوروں میں ایک طرف وہی ایک گھاس جانور کھاتا ہے, اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی, اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے, ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے, اور اسی گوبر, اسی بلڈ, اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے. ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں, اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں, کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں. جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا, جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا. گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی, کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے. سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی, کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے. یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں, کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز, زمین, مکان, کپڑے, دکان, ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے. فالتو باتوں میں یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے, وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے. اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں, قرآن نہیں پڑھ رہے, ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی. جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے. ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار, ناول, افسانہ, فکشن وہ چھوڑ دے, صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا, تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور بندہ کو آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا, موبائل, سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا, چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے, قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے, اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. کوئی ایک بات کہا, اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے, کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے, کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے. یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف, چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے. نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے. رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے. اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے, جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے, جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند غور و فکر کرتے ہیں زمین کیسے بنی, آسمان کیسے بنا. زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے, اللہ کیا کھاتا ہے, اللہ کیسے رہتا ہے. نہیں, اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ
बंदा गौर करे, खुदा की जात में गौर न करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। उसके अंदर से आवाज आएगी, जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं, वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं, उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है, क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है। तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है, इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं, तू मसजूद है, मैं साजिद हूं, इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा? करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा? करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा? करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा? करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक उठने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है, वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न खोजते हैं और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं, क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना पड़ जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना हालत। और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस, या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टकने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ ले, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ ले, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए, या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे अय्यब व नक़ाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फ़क़िना अज़ाबन नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे बन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए,
اب یہ گوشت چاہیے تو اللہ نے کہا یہ پرندہ تیرے لیے ہے، یہ بکرا تیرے لیے ہے، تم کھاؤ، یہ سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے، ماچھ بھات تم کھاؤ، تم کو ماچھ بھات چاہیے کھاؤ، تم کو بکرے کا گوشت چاہیے کھاؤ، تم کو مرغ کا گوشت چاہیے تمہارے لیے ہے گوشت، یہ جانور ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کو سواری کے جانور چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، سمندر میں وہ کشتیاں ہیں اور خشکی میں دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے، آپ علامہ عبد القادر بدایوں نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نماز پڑھائی، فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی۔ جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے، سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے، مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ابھی سورج کے نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے، 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے۔ یہ کون بول سکتا ہے 3 منٹ؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے 48 سیکنڈ۔ اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئی ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا۔ یہ کون سا علم تھا؟ یہ علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے۔ یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے۔ اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا، چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں، اور آج ہم کو کوئی ملا کہہ دے تو غصہ آتا ہے، جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہ ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی مسجد جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا۔ جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے۔ غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے۔ ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے، ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی، کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکوٰۃ نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی۔ اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے۔ ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، قربانی لاؤ، عشر لاؤ، نصف عشر لاؤ، چندہ لاؤ۔ جب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے، ہمیں ڈر لگنے لگا۔ یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا، ایک صدر بنتا، سیکریٹری بنتا، وہ عشر کلیکشن کرتا، وہ زکوٰۃ کلیکشن کرتا، وہ قربانی کی کھال جمع کرتا۔ باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ، ان کو معنی، بدی، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ۔ تمہارا کام ہے
इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताना करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का पाताज बादशाह था, अब आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए, जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अगहनी तुमको वसूली करनी है, अगहन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन लाए और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए। आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। चूंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है, ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए। जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था हमारे बच्चों के दिमाग में। मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें साफ वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौली बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाएं। सारी एनर्जी इसी 2
पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है उस दुनिया की बात कौन करेगा? ना बाप ने सिखाया, ना माँ ने सिखाया, ना कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और माँ का है, जिसने घर में खाने पीने मटन चिकन बीफ और साहब वॉच क्लॉक पैंट शर्ट टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने सवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है। अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वो बात की नौकरी चाकरी की, वो बात की कारोबार की, वो बात क्या बिजनेस का, वो बिजनेस लिया ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फतरतुज ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा में करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू पे आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो। ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए हैं, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, ये ऊंट ये घोड़ा ये खच्चर ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, इस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तुम ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा, मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर न उतर सके, जहां एरोप्लेन न जा सके, जहां बस ट्रक बाइक न जा सके, वहां यह घोड़ा जाता है। यह अजूबा वंडरफुल जानवर यह घोड़ा तुम्हारे लिए है, ताकि तुम सवारी का काम लो, वजीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हो, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहे, जो घोड़े का हुस्न है वो कार में कहां है, वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई हैं, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? लितरकबूहा वजीना, ताकि तुम इन सवारियों इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। कि दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। ये जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और
آگے اللہ نے فرمایا چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا, ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا. اونٹ ہے دیکھنے کی چیز, گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز, اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز, لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. شاذ نادر, کم استعمال. زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے. سائیکل, موٹر سائیکل, ٹیمپو, ٹوٹو, کار, اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار, لگژری کار, 50 لاکھ کی کار, 100 کروڑ کی کار بھی ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے. سڑک پہ 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے. 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں, 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں. یہ کار کی سواری. اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری, یعنی جس میں 100 پہیہ ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, سامان لے کے جائیں. زبردست سواری ہے ٹرین کی. اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز. 300-500 یاتری کو لے کے جائے, 90 یاتری کو لے کے جائے. چھوٹا پلین, بڑا پلین, جمبو پلین جس میں 397 لوگ سوار ہیں. 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے, 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں. کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟ کیا چرچا ہے ٹرین کا؟ کیا چرچا ہے پلین کا؟ کیا چرچا ہے 2 ویلر کا؟ ہاں, جو دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں 110% اس آیت کریمہ میں پلین کا چرچا ہے, اس میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے, اس میں تمام سواریوں وہیکلز کا چرچا ہے. اور جو سواری آج نہیں وجود میں آئی ہے اس کا بھی چرچا ہے. جو آج کے 500 سال کے بعد جو سواری پیدا ہوگی ٹرین میں, ابھی سب سے فاسٹسٹ ٹرین پہلے شتابدی راجدھانی تھی اور ابھی ونڈے بھارت آ گئی. ہم وندے نہیں بولتے, ونڈے بولتے ہیں. یہ ونڈے بھارت, یہ ٹرین آ گئی ہے. یہ ونڈے بھارت ٹرین ہے. یہ ونڈے بھارت سب سے زیادہ فاسٹ اسپیڈ میں چلتی ہے. اب 100 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد اب کون فاسٹسٹ ٹرین آئے گی جو 500 کی رفتار میں دوڑے گی؟ اس کے لیے ٹریک بن جائے, اس کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن وہ سواری آنے والی ہے. اور میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا قرآن کریم میں موجود ہے. ابھی ہیلی جہاز, ہیلی کاپٹر, ایروپلین, ہیلی کاپٹر اور راکٹ, اس کے بعد جو تیز سواری آ جائے آج کے 100 سال کے بعد, جب وگیان اور وکاس کرے, سائنس اور ترقی کرے گی, اس سواری وجود میں آ سکتی ہے. پاسبلٹی ہے, امکانات موجود ہے. مگر میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا جو قیامت تک وجود میں جو سواریاں آئیں گی اس کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے. آپ بولیں گے زور بیان ہے یا پھر کوئی پروف, کوئی دلیل ہے؟ ذرا سنیے غور سے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. اللہ نے کیا کہا؟ جو سواری آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تھی, جس سے سواری کا کام لیا جاتا تھا اور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت میں, اس کا نام اس میں ہے. یہ اونٹ, یہ گھوڑے, یہ خچر تمہارے لیے ہیں تاکہ سواری کا کام لو اور اپنے دروازے کی زینت کا بھی. اب آگے اللہ فرماتا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ. یخلقو یہ فعل مضارع کا صیغہ, فعل مضارع کا صیغہ مدرسے کے بچے جانتے ہیں. اور ایک انگریزی میں ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس, ایک پریزنٹ ٹینس, ایک فیوچر ٹینس. لیکن عربی میں ماضی اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے, مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل, یہ دونوں کا میننگ اس میں ہوتا ہے فعل مضارع میں. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, وہ پیدا کرے گا. انگریزی میں آتا ہے ہی کریٹس, وہ پیدا کرتا ہے. ہی ول کریٹ, وہ پیدا کرے گا. مگر عربی میں آیا ہے یخلقو, وہ پیدا کرتا ہے, پیدا کرے گا. یفعلو وہ کرتا ہے ایک مرد یا کرے گا ایک مرد. یفعلان وہ کرتے ہیں 2 مرد یا کریں گے 2 مرد. فعل مضارع میں دونوں معنی ہوتا ہے, پریزنٹ کا بھی فیوچر کا بھی. اب اللہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے. یہ اونٹ, یہ گھوڑے تیرے لیے ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یخلقو کا مطلب آج نہ اونٹ اور گھوڑا ہے, کل اللہ تیرے لیے پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. He will create
that which you don't know, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो, वो सवारी पैदा करेगा। मतलब माँ में वो सारी चीजें मौजूद है। जैसे which और that अंग्रेजी में आता है, he will create which you don't know, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। he will create, वो पैदा करेगा that which you don't know, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां हैं, तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा, चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा, वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह मां का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया, उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा। मां के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर मां की गोद में जब पैदा हुए, अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब ये खून दूध बनता कैसे है? अब चले फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में, चूंकि औरतों को जो पैदा दूध बनता है वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक मां का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक मां का दूध, 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध या भैंस का दूध या बकरी का दूध। अब ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है, जहां से बोलोब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से। कौन है? कितने वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं। आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्ताने के बारे में औलफल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अजाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है, और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता है। ये 1400 साल में ही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। न प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, न कानून पढ़ने से कुछ होगा, न अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। न पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा। पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। न प्रोटेस्ट से काम चलेगा, न पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहां खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर
शरीर क्या जाने, वो शरीर है इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है। मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। या आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा, मगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बढ़ाना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है, उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया। ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर किरात लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान बनाता है। वो आदमी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा, मस्जिदें वीरान होती रही। हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे है, इसलिए ये नाराजगी का इजहार ये काफी हमारी मस्जिदों को गसब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम गम से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाया 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे घास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजियों से भरी है तो वो मस्जिद खुशहाल है, वो मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए। इलाही जिस तरह यह लोग मेरा पेट भरते हैं उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एसी लगा दें और हमारी फर्ज नमाज हमसे माफ हो जाए, नहीं होगा। 1 लाख एसी लगा दिए नफल है और अपनी नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना, ये 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह नफल है। और अपना सजदा करना यह फर्ज है, यह नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, यह नफल है। ज़कात का 100 रुपया यह फर्ज है। जब तक ये अदा नहीं होगा उस वक्त तक 1 करोड़ कंबल बांटने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक लटकी भी रहेगी। यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक बंदा फर्ज ना अदा करे। बंदा फर्ज है नमाज पढ़ना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स एसी लगाना फर्ज नहीं है। वह एक अच्छा काम है, जैसे कि चावल और रोटी जरूरी है। अब सलाद, पापड़, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी उसकी हुस्न को बढ़ाने के लिए। अब रोटी और चावल ही नहीं रहे, अब पापड़ और सलाद खा के आदमी जिंदगी गुजारेगा। बेस है, बुनियाद है चावल और रोटी। अब उसी के जायके को बढ़ाने के लिए सलाद है और पापड़ है। उसी तरह से मकसद हयात है, मकसद तामीर मस्जिद है सजदा, नमाज। अब नमाज ही नहीं है वो साम मीनार बना रहा है, नमाज ही नहीं है वो ग्रेनाइट लगा रहा है, नमाज ही नहीं है वजू खाने में पत्थर चमका रहा है, नमाज ही नहीं है एसी लगा रहा है। सब बेकार हो जाएगा। नफल हंग रहेगा जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात फर्ज है और ये कंबल बांटना, लंगर खिलाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है और ये शबे कदर में जागना, शबे मेराज में जागना और शबे बारात में जागना ये नफल है, फर्ज नहीं है, नफल है। जुमा की नमाज बहुत सारी जगहों पे फर्ज नहीं है, अब वहां जुमा के लिए मारा मारी है। अब फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। यह फर्ज के ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है और नफल के ताल्लुक से जुमा के दिन भीड़ लगी हुई है। ईद बकरीद नमाज की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। ज़ोहर उससे ज्यादा ताकीदी नमाज है, ज़ोहर फर्ज है, ईद बकरीद वाजिब है। मगर
वाजिब के लिए मारा मारी है, वाजिब के लिए साहब कमेटी की तश्कील दी जा रही है, वाजिब के लिए साहब लंबी ऊंची टोपी पहन के पहली सफ में जगह बनाई जा रही है। और जो उससे बड़ी नमाज है नमाज पंजगाना, उसके लिए ना कोई सरगर्मी है, उसके लिए ना कोई मेहनतें हैं, उसके लिए ना कोई जद्दोजहद है, उसके लिए ना कोई शौक है, ना उसके लिए कोई दिमाग में कोई और साहब जोर चल रहा है। बस इतना है, नफल के लिए पागल है लोग, टोपी के लिए पागल है साहब, जुब्बा के लिए पागल है, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी, मगर नमाज फर्ज आज़म है। वह सब मसला बाद में है कि टोपी कब पहनी जाएगी, कब कैसे पहनी जाएगी, यहाँ बटन लगाया जाएगा, यहाँ कलाई खोली जाएगी, नमाज ही नहीं है, कलाई का मसला बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट नमाज का प्लान ही तो नंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नंगे नमाज पढ़ो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकता है तो इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना होगा। कपड़ा नहीं है, नंगे पढ़ो, गड्ढा खोद के पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, मस्जिद में जाओ अपने घर के अंदर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। अब फर्ज है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। अब साहब चले हैं साहब टोपी करना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना, पहले फर्ज अदा कर, नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो नमाज का हुस्न है, जो नमाज की खूबसूरती है, फराइज व वाजिबात अपनी जगह है, लेकिन जो मसनून तरीके हैं तब न वो बंदा खोजेगा आगे। पहले रोटी चावल तो आ जाए, उसके बाद में सलाद और पापड़ का ख्याल किया जाएगा, तब उसके बाद समझा जाएगा कि पगड़ी पहनने पर नमाज की कितनी फजीलतें हैं, पगड़ी पहनने के बाद नमाज का क्या सवाब है। नमाज ही नहीं है, अब पगड़ी पहन के नमाज की फजीलतें बयान की जा रही है। यहाँ नमाज पढ़े बंदा पहले बता दे लोगों से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जवान होने के बाद मर्द औरत देहाती शहरी सब पर सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दरगाहों की हाजिरी का ये सवाल नहीं होगा, बताशा पे फातिहा का ये सवाल नहीं होगा, पंडवा शरीफ और सदुल्लापुर जाने का ये सवाल नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना है, फातिहा पढ़नी है, दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ कबूल होती है, लेकिन कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, अजमेर क्यों नहीं गए, तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं गए। सवाल अगर हज फर्ज है तो हज का फर्ज का सवाल होगा, लेकिन ये सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बगदाद क्यों नहीं गए। हाँ, अल्लाह पैसा दे तो जाओ, हर महीने की 6ठी अजमेर में करो, अल्लाह पैसा दे तो हर महीने की 11वीं बगदाद में करो। पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं, मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मजार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्दाल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो कयामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया। ये सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान के रोजा, 1 तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15 रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता है मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शाबान के महीने में 10 रोजे रखती है। 50 रखो, अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है। वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम करके नाश्ता खाती है वो 12 बजे, वो दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे ना वैसे नियत कर लिया, रोजे की रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है वो। हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वह नहाएंगी 3 बजे, इसमें इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि कफून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चराग जला के देखती थी कहीं गलत बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कज़ा रोजा रख नहीं रही है।
और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं, फजीलत है इस रात और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इस रात का सवाब है, हज और उम्रा का, इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, चाश्त का की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है, वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, और 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कज़ा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रही, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज हैं उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया, इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उस कज़ा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, ये पूरा मकदूर का पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं, मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना, पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ।